امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر حملے کے بعد گرفتار صدر نکولس مادورو کو آج نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مادورو پر منشیات اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کا الزام ہے۔ امریکی فوج نے میری ہدایت پر طاقت کا غیر معمولی اور شاندار مظاہرہ کیا۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وینزویلا کے انتظامی امور اقتدار کی منتقلی تک امریکہ چلائے گا۔ امریکی تیل کی کمپنیاں اب وینزویلا جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس۔ نائب صدر ڈیلسی نے وینزویلا کا اقتدار سنبھال لیا، کسی ملک کی کالونی نہ بننے کا اعلان۔ عدالت عظمیٰ نے نائب صدر ڈیلسی کو عارضی طور پر عہدہ سنبھالنے کا حکم دیا تھا۔ ڈیلسی کی ملک میں مسلح جارحیت کی مذمت، ملکی دفاعی کونسل کو فعال کر دیا گیا ہے۔ یہاں واضح حکومتی نظام موجود ہے۔ وینزویلا باوقار اور قانونی مکالمے کے لیے تیار ہے۔ وینزویلا کے نائب صدر کا سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب۔ اقوام متحدہ کا وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی پر اظہار تشویش۔ امریکہ بین الاقوامی قانون کا احترام کرے، حملے کے خطے پر تشویشناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ فوجی کارروائیاں خطرناک نظیر قائم کرتی ہیں۔ فریقین عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا مکمل احترام کریں۔ جامع اور بامقصد مذاکرات سے بحران کا پرامن حل نکالا جائے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی پر دنیا سراپا احتجاج۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے۔ وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے بینرز بھی لہرائے گئے۔ نیو یارک شہر کے ٹائم سکوائر میں بھی احتجاجی ریلی۔ صدر ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس، ایتھنز، روم، ارجنٹینا اور کولمبیا میں بھی امریکی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر عالمی محکمہ سے ملاقات۔ فریقین کا دو طرفہ تعلقات، سی پیک کے تحت جاری منصوبوں اور خطے میں ہونے والی پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کی دوستی کی 75ویں سالگرہ بھرپور انداز میں منانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم پاکستان چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے چین کے دورے پر ہیں۔ معصوم لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے رعایت کے مستحق نہیں۔ حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ ایف آئی اے کراچی زون کے دورے میں منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کا بھی حکم۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون کے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بریفنگ۔ بین الاقوامی مسافروں کے لیے خوشخبری۔ ایف آئی اے نے بین الاقوامی مسافروں کی سہولت کے لیے ملک بھر کے تمام زونل دفاتر میں پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیے۔ ڈیسک کا مقصد مسافروں کو امیگریشن کے طریقہ کار اور کلیئرنس سے متعلق رہنمائی اور معاونت فراہم کرنا ہے، تاکہ انہیں ایک ہموار اور بغیر کسی مشکل کے سفری تجربہ میسر آ سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی۔ ایس آئی ایف سی کی دور اندیش معاشی حکمت عملی کی بدولت پاکستان کے ڈیجیٹل بینکاری نظام پر عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مستحکم۔ عالمی ڈیجیٹل آپریٹر ویون گروپ کی جانب سے موبلنک بینک میں $2 کروڑ کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان۔ ویون گروپ کا ذیلی ادارہ موبلنک بینک دنیا بھر میں ڈیجیٹل صارفین کو خدمات فراہمی میں سرگرم۔ سرمایہ کاری کا مقصد موبلنک بینک کے ایم ایس اے فائنینسنگ پورٹ فولیو اور ڈیجیٹل اسلامی بینکاری کو فروغ دینا ہے۔ دہشت گردوں کی حکومتی سرپرستی کے بعد طالبان رجیم کے انسانیت سوز جرائم کا بھی پردہ چاک۔ افغان جریدے ہشت صبح کا 2025 کے دوران طالبان کی جانب سے سابق فوجی اہلکاروں کو منظم انداز میں نشانہ بنانے کا انکشاف۔ طالبان نے 2025 میں 123 سابق فوجی اہلکار قتل جبکہ 131 کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ طالبان رجیم کی جانب سے بیشتر گرفتاریاں بغیر کسی عدالتی وارنٹ کے کی گئیں۔ سفاق طالبان رجیم کا جابرانہ رویہ خطے کے ساتھ افغانستان کے لیے بھی خطرات کا باعث بن چکا ہے۔
भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर शदीद सुबकी और रुसवाई का सामना। नाअहल और गैर पेशावराना भारतीय पायलट्स की सलाहियतों की हकीकत पहले ही दुनिया भर में रुसवाई का बाइस। पै दर पै भारतीय फजाई हादसात के बाद एक और एयर इंडिया का पायलट नशे की हालत में कनाडा में गिरफ्तार। कनाडा के ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का एयर इंडिया से पायलट के नशे के वाकये की तहकीकात का मुतालबा। रॉयटर्स। इससे कबल 12 जून को एयर इंडिया का जहाज अहमदाबाद के करीब एविएशन की गफलत से गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 274 हलाकतें हुईं। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्तोर के बाला इलाकों में निमर्ग, कमरी, प्रशिंग और रटू समेत बाला इलाकों में बर्फबारी। शिगर समेत बल्तिस्तान में भी बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। गिलगित शहर और मज़ाफात में मतला अबरालूद। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खेल या सियासत, भारतीय रवैये पर बांग्लादेश का सख्त रद्देअमल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। कोलकाता में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। मैचेस मुंतकिल कराने के लिए ICC को बाज़ाब्ता खत लिखने की तैयारी शुरू। वजारत इत्तलात व नशरियात से बांग्लादेश में IPL की नशरियात रोकने की दरख्वास्त। एशेज सीरीज सिडनी में 5वें टेस्ट पहले रोज इंग्लैंड के 3 विकेटों पर 211 रन। बारिश के बाद सिर्फ 45 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी। एशेज सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और इंटरनेशनल लीग T20 कौन बनेगा चैंपियन, फैसला आज होगा। फाइनल में आज डेजर्ट वाइपर्स और MI एमिरेट्स मध्य मुकाबिल होंगे। दुबई में शेड्यूल मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आलमी मंजरनामे से आपको खबर देते हैं। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई के बाद सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर को अमरीकी बोइंग 757 तैयारे के जरिए न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक निकोलस को हेलीकॉप्टर में मैनहट्टन पहुंचाया गया, जहां उन्हें ब्रुकलिन हिरासती मराकज रखा गया है। मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक वहां के मामलात खुद चलाने का ऐलान किया है। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी कौम अमेरिका की तरह ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती। मेरी हिदायत पर फौज ने कामयाबी से कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि निकोलस को अहलिया के हमरा गिरफ्तार किया गया। निकोलस को न्यूयॉर्क में अदालत का सामना करना होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला के अवाम आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। हम वेनेजुएला के अवाम की बेहतरी चाहते हैं, वहाँ के अवाम पर किसी को जुल्म नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हर तरह से अमरीका को महफूज बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला के तेल के बड़े ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगी। अरबों डॉलर लगाकर वेनेजुएला का तबाहशुदा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में ऑपरेशन का मकसद डिक्टेटर मादुरो को इंसाफ के कटहरे में लाना है। जो अमरीकी सलामती के खिलाफ इकदाम करते हैं वो ये ऑपरेशन देख लें। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद किया कि वेनेजुएला तेल की आमदन मनशियात और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका के पास वेनेजुएला के सदर के खिलाफ जराइम के शवाहिद मौजूद हैं। अदालत उज़्मा के हुक्म पर नायब सदर डेल्सी ने वेनेजुएला का इक़्तिदार संभाल लिया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रात गए हुक्मनामा जारी किया कि नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स इंतजामी तसलसल और मुल्क के हमजहद दिफा की जमानत के लिए कायम मुकाम की हैसियत से सदारती दफ्तर से वाबस्ता तमाम तर सफ़ात, फ़राइज़ और इख्तियारात संभालें और उनका इस्तेमाल करें। वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी ने सरकारी टेलीविजन पर खिताब करते हुए मुल्क पर होने वाली मुसल्लह जारियत की मजम्मत की और कहा कि मुल्क की दिफाई काउंसिल को फाइल कर दिया गया है। डेल्सी ने कहा कि निकोलस को अगवा किया गया, वही सदर हैं, किसी की कॉलोनी नहीं बनेंगे। रोड्रिग्स ने कहा कि यहाँ एक वाज़ेह हुकूमती निज़ाम मौजूद है। वेनेजुएला बावकार और कानूनी मुकालमे के लिए तैयार है। वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर ने कौम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला को चलाने के दावे को मुस्तरद कर दिया। डेल्सी ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। अमरीकी फ़ौज की कार्रवाई के बाद हम वेनेजुएला के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। डेल्सी ने कहा कि वेनेजुएला को दोबारा अजीम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं।
وینزویلا کی حکومت نے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملے کا جواب دینے کے لیے وینزویلا کی خصوصی دفاعی کونسل بلا لی ہے۔ ناظرین، وینزویلا کی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں وینزویلا کی صورتحال پر غور ہوگا۔ کولمبیا کی درخواست پر 15 رکنی کونسل کا یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ روس اور چین نے بھی درخواست کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اس اقدام کو ایک خطرناک مثال قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے وینزویلا میں امریکہ کی فوجی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ حملے کے خطے پر تشویشناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی فوجی کارروائیاں خطرناک نظیر قائم کرتی ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا مکمل احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی پاسداری نہیں کی گئی۔ انہوں نے اس صورتحال کو عالمی قانونی نظام کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے وینزویلا کے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے مکمل احترام کے ساتھ جامع اور بامقصد مذاکرات کا راستہ اختیار کریں تاکہ بحران کا پرامن حل نکالا جا سکے۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی پر دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور نعرے لگانے کے ساتھ مظاہرین نے وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے بینرز بھی لہرائے۔ نیو یارک شہر کے ٹائمز اسکوائر میں مظاہرین نے ریلی نکالی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پیرس میں مظاہرین نے وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت کی اور وینزویلا کے جھنڈے لہرائے۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے خلاف یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ روم میں اٹلی کے شہریوں کا وینزویلا میں امریکی آپریشن کے خلاف احتجاج اور ارجنٹینا اور کولمبیا میں بھی امریکی حملے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ناظرین، بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر سبکی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایئر انڈیا کا ایک پائلٹ نشے کی حالت میں کینیڈا میں گرفتار کر لیا گیا۔ برطانوی خبریں ادارے رائٹرز کے مطابق پائلٹ کو ٹیک آف سے قبل نشے کے زیر اثر پائے جانے پر پرواز سے فوری ہٹا دیا گیا، جس کے بعد پرواز روک دی گئی۔ کینیڈین حکام نے پائلٹ کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جو ناکام رہا اور سنگین حفاظتی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ کینیڈا نے ایئر انڈیا کو 26 جنوری تک تحقیقات کی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔ ادھر بھارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے بھی ایئر انڈیا کے 4 پائلٹس کو وارننگ نوٹس جاری کیے ہیں۔ عالمی ایویشن ماہرین کے مطابق یہ واقعات بھارت میں سول ایویشن کے کمزور نگرانی نظام اور انتظامی ناکامی کی واضح مثال بن چکے ہیں۔ دہشت گردوں کی سرپرستی کے بعد طالبان رجیم کے انسانیت سوز جرائم کا ایک اور خوفناک پہلو بے نقاب ہو گیا ہے۔ افغان جریدے ہشت صبح کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے 2025 کے دوران 29 صوبوں میں 123 سابق افغان فوجی اہلکاروں کو منظم انداز میں قتل کیا، جبکہ 20 صوبوں میں 131 سابق اہلکاروں کو گرفتار کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر گرفتاریاں بغیر عدالتی وارنٹ کے کی گئیں اور طالبان کی جیلوں میں سابق فوجیوں پر بدترین جسمانی تشدد روا رکھا گیا۔ متاثرہ خاندانوں نے انکشاف کیا کہ انہیں میڈیا سے بات کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی مشن بھی سابق سرکاری اہلکاروں کے خلاف ماورائے عدالت قتل، گرفتاریوں اور تشدد کی تصدیق کر چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارتی پشت پناہی طالبان رجیم کو مزید بے لگام کر رہی ہے، جو افغانستان اور پورے خطے کے لیے سنگین خطرات کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی محکمے کے وزیر مسٹر لیو ہاشنگ سے ملاقات میں دونوں فریقین نے پاک چین دو طرفہ تعلقات کے مستحکم اور مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پارٹی سطح پر روابط، علاقائی امور اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے وزیر لیو کو چین کی کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں مرکزی کمیٹی کے چوتھے کل رکنی اجلاس کی کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کو شایان شان طریقے سے منانے پر اتفاق کیا۔ ایس آئی ایف سی کے سرمایہ دوست ڈیجیٹل اصلاحاتی فریم ورک کے تحت 2026 میں پاکستان کے مالیاتی شعبے میں سرمایہ کاری کا ایک خوش آئند آغاز ہو گیا ہے۔ عالمی ڈیجیٹل آپریٹر ویون گروپ نے موبلنک بینک میں $20 ملین کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جو پاکستان کے ڈیجیٹل اور اسلامی بینکاری شعبے میں عالمی اعتماد کا مظہر ہے۔ یہ سرمایہ کاری جنوری 2025 میں کی گئی $15 ملین کی سرمایہ کاری کا تسلسل ہے، جس کا مقصد ایم ایس ایم ای فائنینسنگ، ڈیجیٹل اسلامی بینکاری اور ٹیکنالوجی پر مبنی بینکاری نظام کو فروغ دینا ہے۔
ویون گروپ کے چیئرمین موبلنگ بینک عامر ابراہیم کے مطابق یہ سرمایہ کاری پاکستان کے ڈیجیٹل مالیاتی نظام میں جاری ساختی اصلاحات پر طویل المدتی اعتماد کی واضح علامت ہے۔ 2026 کی یہ پہلی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری SIFC کی رہنمائی میں پاکستان کی معاشی بحالی، عالمی اعتماد اور پائیدار ترقی کی سمت ایک مضبوط پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن پاکستان میں قومی خدمت اور معاشی استحکام کی ایک درخشاں مثال بن چکی ہے۔ گزشتہ 70 برسوں سے یہ ادارہ خود کفیل فلاحی ماڈل کے تحت ریٹائرڈ فوجیوں، شہداء اور بیواؤں کی فلاح کو کامیابی سے یقینی بنا رہا ہے۔ بغیر ریاست پر بوجھ بنے فوجی فاؤنڈیشن ملک کی تقریباً 5% آبادی یعنی 1 کروڑ مستحق افراد کی معاونت کر رہی ہے اور اپنی سالانہ آمدن کا 70% سے زائد 12 سے 14 ارب روپے فلاحی سرگرمیوں پر خرچ کرتی ہے۔ ادارے کے تحت 74 طبی مراکز، 131 تعلیمی ادارے اور ہزاروں وظائف جاری ہیں، جبکہ صرف 2024-25 میں 383 ملین روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے۔ فوجی فاؤنڈیشن توانائی، کھاد اور روزگار کے شعبوں میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے قومی معیشت کو سہارا دے رہی ہے۔ خود کفالت، شفافیت اور خدمت پر مبنی یہ ادارہ آج پاکستان کے فلاحی اور معاشی نظام کا ایک مضبوط ستون بن چکا ہے۔ اور ناظرین، دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی ورلڈ بریل ڈے منایا جا رہا ہے۔ بریل ڈے کے عالمی دن کے حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر کی یہ رپورٹ۔ بریل ایک ایسا تحریری نظام ہے جو بصارت سے محروم افراد کو پڑھنے اور لکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بریل کا ہر حرف ابھرے ہوئے 6 نقطوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نقطے مختلف ترتیب میں مختلف حروف، اعداد اور علامات تشکیل دیتے ہیں جنہیں انگلیوں کے لمس سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ نقطے بصارت سے محروم افراد کے لیے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ سوچ میں ڈھلتے ہیں اور سوچ انہیں با اختیار انسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ آج الحمدللہ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں MA کیا، اور اگر یہ لینگویج وہ ایجاد نہ کرتے تو آج ہم لوگ مستفید ہو کے یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ یہ بریل بورڈ ہے، پہلے ہمیں اس کے ڈاٹس یاد کروائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بریل بورڈ سے لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ 27 لائنز ہوتی ہیں اور ہر لائن میں 30 سیلز ہوتے ہیں اور ہر سیل کے اندر 6 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ بریل کا رول یہ ہے کہ ہم رائٹ سائڈ سے اس کو لکھتے ہیں اور لیفٹ سائڈ سے پڑھتے ہیں۔ ورلڈ بریل ڈے نابینا افراد کی تعلیم، خود مختاری اور باوقار زندگی کی علامت کا دن ہے۔ فرانس کے ایک نوجوان لوئس بریل نے 1824 میں یہ نظام متعارف کروایا، جو خود بھی نابینا تھے۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بصارت سے محرومی کمزوری نہیں بلکہ ایک مختلف صلاحیت کا نام ہے۔ بصارت سے محروم افراد کی جو دنیا ہے، اس میں علم کی روشنی کی جو شمع ہے وہ جلائی لوئی بریل نے۔ بریل بورڈ ہے، بریل فریم ہے، پرکن مشین آتی ہے اس میں، پھر بریل بکس ہیں۔ بریل کا عالمی دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا صرف آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ سوچ اور احساس کی نگاہوں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ صدر آصف علی زرداری نے عالمی یوم بریل کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کے دن میں پاکستان بھر میں بینائی سے محروم افراد کے وقار، حقوق اور قومی زندگی میں بھرپور شمولیت کے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان بریل خواندگی کے فروغ، جامع نصاب اور معاون اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال کے لیے پرعزم ہے تاکہ تعلیم اور معلومات تک رسائی کو مزید وسعت دی جا سکے۔ صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں، اداروں، سول سوسائٹی، نجی شعبے اور پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ باہمی تعاون سے رکاوٹوں کے خاتمے، قابل رسائی سہولیات کے فروغ اور ہمدردی اور شمولیت پر مبنی نظام کے فروغ کے لیے کام کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی یوم بریل کے موقع پر پاکستان اور دنیا بھر کے بصارت سے محروم افراد کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ لوئی بریل کے انقلابی لمسی تحریری نظام نے دنیا بھر میں بصارت سے محروم لاکھوں افراد کے لیے تعلیم، معلومات تک رسائی اور باوقار زندگی کے مواقع پیدا کیے۔ حکومت بصارت سے محروم افراد سمیت تمام خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ، یکساں مواقع کی فراہمی، مساوی معاشرے کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں بصارت سے محروم افراد مختلف شعبوں حتیٰ کہ مسابقتی امتحان میں بھی کامیابی کے بعد بڑی جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں محترمہ سائمہ سلیم نمایاں ہیں جو وزارت خارجہ کی آفیسر کی حیثیت سے پاکستان کے اقوام متحدہ مشن میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ بے شک ایسی کامیابیاں استقامت، اہلیت اور قومی وقار کی روشن مثالیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئیے بحیثیت قوم اس عزم کی تجدید کریں کہ کوئی بھی شہری اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مواقع کی فراہمی میں پیچھے نہ رہ جائے اور ہر فرد بصری صلاحیت سے قطع نظر پاکستان کی ترقی میں اپنا بیش قیمت اور بامعنی کردار ادا کر سکے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन किया जाए। इस मकरू धंधे में मुलव्वस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। कराची में FIA कराची जोन के खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए और हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट्स माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म देते हुए उन्होंने कहा कि मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले अनासिर रत्ती भर रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि जाली अद्वियात का कारोबार करने वाले इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं, मुलव्वस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। डायरेक्टर FIA कराची जोन ने ब्रीफिंग में बताया कि 4 माह में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 20 एजेंट्स को गिरफ्तार जबकि 14 करोड़ रुपए की नॉन कस्टम मसनूआत और ड्रग्स को जब्त किया गया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कराची एयरपोर्ट पर सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के हज कॉम्प्लेक्स में आज़मीन हज की तरबियत का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तरबियती प्रोग्राम का मकसद आज़मीन को इस मुक़द्दस सफ़र के लिए रूहानी, जिस्मानी और इंतज़ामी तौर पर तैयार करना है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट देखते हैं। तरबियती प्रोग्राम का मकसद आज़मीन को हज के तमाम अरकान, मनासिक और इंतज़ामी उमूर से मुकम्मल तौर पर आगाह करना है ताकि वो अपने इस मुकद्दस सफ़र को आसानी और इत्मीनान के साथ अदा कर सकें। हज तरबियत के दौरान माहिरीन ने आज़मीन को एहराम बांधने, तवाफ़, सई, वकूफ़ अरफा, मुज़ल्फ़ा और रमी जमरात समेत दीगर अहम इबादात के अमली तरीके सिखाए। इसके अलावा सऊदी अरब में क़याम, सेहत व सफ़ाई, नज़्म व ज़ब्त और हुकूमती हिदायत पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आज़मीन ने इस इक़दाम को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि ऐसी तरबियत हज की अदायगी को आसान बनाने में नहायत मददगार साबित होती है। अबूर के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा हमें रिसेप्शन दिया और ट्रेनिंग का आगाज़ बहुत तरतीब से और बहुत तफसीलन किए है और इससे बड़ा फ़ायदा होता है। जिस को थोड़ा बहुत डाउट भी होता है वो क्वेश्चन भी कर जाते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से उसके जवाब दे देते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। हम तो पहली दफ़ा रहे हैं, पहले उम्रा किया हुआ है, तो ट्रेनिंग के हवाले से हम पहली दफ़ा हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम उन्होंने किया था। आज हम अल्लाह के फजल व करम से यहाँ ट्रेनिंग में आए तो ट्रेनिंग हमारा बहुत बेहतरीन रहा और बहुत ही बेहतरीन सवालात और जवाबात की नशिश भी रही और इल्मी लिहाज से भी बड़ा बेहतरीन रहा। काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें मालूम हुई, जो चीज़ें हमें पता नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज के साथ ट्रेनिंग की तकमील हुई आज। मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है ये और बहुत अच्छा इकदाम भी, और ये सब हर साल होना चाहिए क्योंकि मोस्टली फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो पहले से अगर बहुत सी चीज़ों का पता होता है तो हर चीज़ फिर बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। हुकाम के मुताबिक तरबियती सेशंस मरहलावार मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि तमाम आज़मीन को भरपूर रहनुमाई फराहम की जा सके। इंतज़ामिया का कहना है कि हज तरबियत का ये सिलसिला रवानगी से कबल जारी रहेगा और तमाम आज़मीन की शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ारत मज़मून के ज़रिए तमाम हज तरबियती वर्कशॉप्स का जारी हो चुकी हैं, 1 जनवरी से हो रही हैं और मुख्तलिफ तहसीलों में और शहरों में मुनक्किद हो रही हैं। आज हम खड़े हुए हैं इस्लामाबाद हाजी कैंप और यहाँ पर भी तीसरा दिन आज हज तरबियत जारी रही और माशाअल्लाह सवाल जवाब का भी सिलसिला हुआ। तो आज़मीन हज से गुजारिश है कि अपने शेड्यूल के मुताबिक, जो कि पाक हज ऐप पर भी आ रहा है, SMS के ज़रिए भी आ रहा है, हज तरबियती प्रोग्राम्स में शिरकत करें ताकि आपको इंतज़ामी अमूर से भी और मुनासिक हज से भी आपको आगाही मिले। हज कम्प्लेक्स में जारी ये तरबियती सरगर्मियाँ इस बात की अक्कासी करती हैं कि आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात और मुकम्मल रहनुमाई फराहम करने के लिए संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और मलाइशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन हाजी हसन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान और मलाइशिया के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। रहनुमाओं ने एशिया और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मौजूदा हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियों के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और बेहतर बनाने के लिए पंजाब में अब तक 24 लाख मुस्तहिक़ ख़वातीन को सिम्स जारी करके उनके वॉलेट अकाउंट्स खोल दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से मोहम्मद शफीक आदिल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियों के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाने के लिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट सिम्स का इजरा जारी है। पंजाब भर में अब तक 24 लाख मुस्तहिक़ ख़वातीन को सिम्स जारी करके उनके वॉलेट अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। पंजाब में हमने इस वक्त 49% जो सिम जो है वो
ڈسٹریبیوٹ کر دی ہوئی ہیں. الحمدللہ جب یہ سم ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی تو ہم انہی بینیفیشری کے اکاؤنٹ کے اوپر ان کے جو اماؤنٹ ہے وہ ہم بھیج دیا کریں گے. ہماری بینیفیشریز کی ٹریننگز بھی چل رہی ہے, ہم کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس والیٹ اکاؤنٹ کو کس طرح یوز کرنا ہے. مستحق خواتین نے حکومت کی جانب سے جدید ڈیجیٹل پیمنٹ پلان کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس نظام سے انہیں شفاف انداز میں رقوم کی ادائیگی کی سہولت میسر آئے گی. میں یہ اتنا بہت اچھا انتظام ہے, میرے سے مل گئی ہے, حکومت کا شکریہ. سے مل گئی ہے تے ساکو جڑے پیسے سے میں مل سن تے جڑا ہے تم اپنے حفاظت کرے سو خرچ کرے سو. پہلے لائنوں میں کھڑی رہتی تھی, بہت پریشان ہوتی تھی, اور اب مجھے سم مل گئی, میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے, میں لے لوں گی, پیسے استعمال کر لوں گی. ڈی جی پنجاب BISP پروگرام حیدر مرتضیٰ نے ملتان میں سمز جاری کرنے والے مختلف مراکز کے دورے میں مستحق خواتین سے ملاقات کی. انہوں نے سمز کی تقسیم, انتظامی امور اور مستحقین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں BISP پروگرام کی تمام ادائیگیاں انہی والیٹ اکاؤنٹس کے ذریعے کی جائیں گی. محمد شفیق عادل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ملتان. نیشنل انکیوبیشن سینٹر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نوجوانوں اور طلباء کے لیے کاروباری مواقع فراہم کرتے ہوئے جدید خیالات کو کامیاب سٹارٹ اپس میں تبدیل کر رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں کاشف منیر. NIC فیصل آباد نوجوانوں کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں طلباء اور ابھرتے ہوئے کاروباری افراد اپنے تخلیقی خیالات کو کامیاب کاروبار میں تبدیل کر رہے ہیں. مرکز میں شامل طلباء نے صحت, IT, فیشن اور ماحولیت جیسے اہم شعبوں میں جدید اور مؤثر کاروباری منصوبے متعارف کروائے. NIC فیصل آباد کے مختلف بیچز سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء نے نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے بلکہ ملکی معیشت میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے. NIC فیصل آباد منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کرتے ہیں. ہماری کوہورٹ 6 کی اپلیکیشن ابھی اوپن ہے جس میں ہم فاؤنڈرز لیں گے. 1 ایئر ہول پروگرام جس میں آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے, مینٹرشپ دی جا رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے 1-on-1 کوچنگ سیشنز کیے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس آئیڈیا کو اسکیلیبل بزنس بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں. بیسک لیول سے پروموٹ کیا, ہمیں نیٹ ورکنگ, مینٹورشپ اور ساتھ میں ہمیں گائیڈنس دی کہ آپ اپنے برانڈ کو کیسے بیسک لیول سے لے کر انٹرنیشنل لیول پہ جا سکتے ہیں. مرکز کی جانب سے خواتین کو کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں جن کے تحت طالبات نے کامیاب اور پائیدار کاروباری ماڈل متعارف کروائے. کاشف منیر, PTV نیوز, فیصل آباد. ناظرین, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے منفرد اور انقلابی پروگرام صحت کی دستک آپ کی دہلیز پر کے تحت کلینک آن وہیلز کے ذریعے اکاڑا میں سال 2025 میں 4,11,228 مریضوں کا مفت علاج ان کے گھر کی دہلیز پر کیا گیا, جس سے اکاڑا کے اسپتالوں کی OPD میں آنے والے مریضوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشرف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے منفرد پروجیکٹ کلینک آن ویلز کے ذریعے ضلع اکاڑا میں سال 2025 میں 4,11,228 مریضوں کا مفت علاج ان کے گھر کی دہلیز پر کیا گیا ہے. کلینک آن ویلز کے ذریعے 13,550 مریضوں کے مفت الٹرا ساؤنڈ اور 36,650 مریضوں کے مفت لیب ٹیسٹ کیے گئے ہیں. ہماری 19 گاڑیاں جو ہیں وہ اکاڑا شہر اور قریبی دیہاتی علاقوں میں جا کے مریضوں کو مفت ادویات کی سہولت دیتی ہیں, اور اس میں جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کا مفت میں الٹرا ساؤنڈ اور معائنہ کیا جاتا ہے. کلینک آن ویلز کی سروسز سے 1,700 مریض روزانہ مستفید ہو رہے ہیں اور 65 مریضوں کو روزانہ مفت الٹرا ساؤنڈ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھے سے میری ٹریٹمنٹ کی ہے اور ہمیں میڈیسن وغیرہ فری دی جا رہی ہیں, اور ہمارے ایریے میں یہ بہت بڑی سہولت ہے ہمیں ملی ہوئی ہے. پہلے ہمیں دور جانا پڑتا تھا دوائیں لینے کے لیے, اب ہمارے محلے میں ٹیم آتی ہے, وہ چیک کرتی ہے اچھی طریقے سے اور ہمیں دوائیں دیتی ہے. کلینک آن ویلز کی سروسز سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے. محمد اشرف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اوکاڑا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر عوام الناس کو ملاوٹ سے پاک اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے منڈی بہاؤدین میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی سربراہی میں سال 2025 میں فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کی جانب سے ملاوٹ مافیا کے خلاف کارکردگی شاندار رہی. گزشتہ سال ضلع بھر میں 25,702 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی. 1,677 فوڈ یونٹس کو حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف کھانے تیار کرنے, ناقص صفائی ستھرائی اور دیگر
दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों पर 1,55,60,000 के जुर्माने आयद किए गए। जालसाजी का मकरू धंधा करने वाले 34 यूनिट्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। साल भर में 54,000 लीटर मिलावटी दूध, 3,670 किलो नाकिस और मुजरे सहित गोश्त और हजारों अंडों को तल्फ किया गया। इस दौरान सैकड़ों दुकानदारों को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि शहरियों को मयारी और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक खुराक की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नाज़रीन, फ़न ख़ताती के फ़रोग़ के लिए मारूफ मुसव्विर हमीद फलक के खूबसूरत फ़न पारों की नुमाइश गुजर खान में हुई, जिसमें ख़ताती का शौक़ रखने वाले तलबा तालिबात समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नौजवान ख़तातों ने इस नुमाइश में भरपूर दिलचस्पी का इज़हार किया। नुमाइश में मौजूद लोगों का कहना था कि फ़न ख़ताती को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की नुमाइश का एहतमाम करना ज़रूरी है। फ़न ख़ताती के ये नमूने हमारी तहज़ीब और सक़ाफ़त और तारीख़ के औराक़ का कीमती सरमाया हैं। इस मौके पर शुरका ने मुसव्विर हमीद फलक के नुमाइशी फ़न पारों को सराहते हुए शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। लिया डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर जिला की तामीर और तरक्की के लिए मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने इस सिलसिले में ई लाइब्रेरी, THQ लेवल अस्पताल फतेहपुर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फतेहपुर बाजार और दीगर मकामात का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने कहा कि जिला लिया की तामीर और तरक्की और इसकी खूबसूरती उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की कि जहाँ सफाई सुथराई और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे जारी हैं, उन्हें बर वक्त और मयारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी को मजीद बेहतर बनाया जाए। हुकूमत पंजाब मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्क्स की हालत बेहतर बनाना हुकूमत पंजाब के तरजीहात में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील और म्यूनसिपल कमेटी दफातर में आने वाले शहरियों के मसाइल के फौरी हल की हिदायत करते हुए कहा कि साइलिन को बर वक्त रसाई दी जाए और उनके काम में गैर जरूरी ताखीर ना की जाए। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, वॉरबर्टन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की बड़ी कार्रवाई। महकमा माहौलियात ने जिग जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वाले भट्टे को मिसमार कर दिया। आलूदगी फैलाने और स्मोक का बायस बनने वाले भट्टे के खिलाफ कार्रवाई वॉरबर्टन में की गई। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि माहौल में बिगाड़ पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। मुतालिका इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टा जात को चेक कर रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब अवाम उन्नास को बेहतर माहौल फराहम करने के अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। ज़िले इंतज़ामिया माहौल को साजगार बनाने के लिए ग्रैंड शजरकारी जारी रखे हुए है। माहौल को साफ बनाने में शहरियों का ताउन इंतहाई नागुज़ीर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर साल लाखों टन कचरा माहौल पर बोझ बनता है, वहां रावलपिंडी की कशफ अख्तर एक मुस्बत तब्दीली की अलामत बनकर उभरी हैं। उनकी कहानी महज प्लास्टिक रिसाइकलिंग तक महदूद नहीं, बल्कि ये जुनून, अज़्म और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की एक दास्तान है। देखते हैं सईद वजीर की ये रिपोर्ट। प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह बन चुका है, क्योंकि इससे गलने सड़ने में सदियां लगती हैं। अगरचे दुनिया के कई ममालिक रिसाइकलिंग के जरिए इस मसले पर काबू पा रहे हैं, तहम पाकिस्तान में हर साल पैदा होने वाला 30 लाख टन से जायद कचरा मुनासिब निज़ाम और अवामी आगाही न होने के बायस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रहा है। ऐसे में कशफ अख्तर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक मज़बूत मिसाल है, जो रोजाना की बुनियाद पर 5000 किलोग्राम से जायद प्लास्टिक कचरा रिसाइकल करके इससे टाइल्स, स्टूल और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में बदल रही है। ये वो प्लास्टिक जो ना रिसाइकलिंग के लिए जाता है ना कुछ और इसका होता है, और ये सदियों भी पड़ा रहे तो इन्वायरमेंट में ही पोल्यूशन का बाइस रहेगा। हम इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें टाइल्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हम टाइल्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, डेकोर और इंडोर आइटम्स के लिए, आउटडोर के लिए भी बना रहे हैं हम, और इसके साथ साथ हम प्लांटर्स बनाते हैं जो एक डेकोर आइटम है। कशफ अख्तर का कहना है कि अगर हुकूमत और अवाम मिलकर रिसाइकलिंग के फरोग के लिए अमली इकदामात करे तो न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी लाई जा सकती है, बल्कि इस शोबे में रोजगार के नए मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। हमारा कलेक्शन का प्रोसेस ये है कि हमारे पास कुछ वेंडर हैं जो हमारे लिए ये स्पेसिफिक थैले, ये शॉपिंग बैग इकट्ठा करते हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला बंदा होता है वो सारा वेस्ट
अलग अलग कर लेते हैं जो वो बेच सकता है आगे, जो रिसाइकलिंग के लिए जाता है, ग्लास हो गया, बॉटल्स हो गई, उसमें से उसके पास एक कैटेगरी बचती है जो उसने जलाने के लिए आगे देनी होती है। वो जो उसने जलाने के लिए देना था वो हम उसे बहुत कम पैसों पे खरीद लेते हैं। प्लास्टिक बिलाशुबा माहौल के लिए एक संगीन मसला है, लेकिन बर वक्त आगाही, इज्तिमाई कोशिशें और अमली इकदामात इस मसले को हल में बदल सकते हैं। कशफ अख्तर जैसे अफराद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि माहौल की हिफाजत अब महज एक इंतखाब नहीं बल्कि इंसानी बका की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू शहर के मुज़ाफ़ात के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है। स्कर्दू में मौसम अब्र आलूद होने के बायस इस्लामाबाद से स्कर्दू की दोनों परवाज़ें मनसूख हो गईं। ज़िला शिगर में आज अलसुब से मुसलसल बर्फबारी हो रही है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। ज़िले इंतज़ामिया शिगर ने तमाम मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। दूसरी जानिब अस्तोर और गांचे में गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे से बर्फबारी जारी है। अस्तोर शहर और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा हो गया है, जबकि बालाई इलाकों का हेड क्वार्टर से ज़मीनी राबिता भी मुनक़ते हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब और बालाई सिंध के बेशतर अजला में धुंध छाई रही और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब आपको आगाह करते हैं कि आज दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों की सूरत हाल क्या रही। पहले नंबर पर मौजूद है बांग्लादेशी दारुल-हुकूमत ढाका, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर कराची मौजूद है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रहा, जबकि तीसरे नंबर पर कोलकाता 245 AQI के साथ रहा। चौथे नंबर पर काबुल रहा, जहां AQI 237 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली आज 5वें नंबर पर मौजूद है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रहा, जबकि होंगजू 171 के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुक करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, खबरनामे में कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। सदर आशियाना सैयद मोहम्मद जमील शाह की तरफ से जश्न मौलूद काबा के मौके पर यूनान में रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल में यूनान भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबरीन समेत सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। महफिल में सना खानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अक़ीदत के फूल निछावर किए। मेहमान खुसूसी आलमी शहरत याफ्ता सना खान सैयद सलमान कोनैन ने अपने मखसूस अंदाज में हदिया अक़ीदत पेश करते हुए महफिल में समा बांध दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद नवाज हज़ारवी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान फरमाते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने हज़रत अली की हयात तैयबा, अदल इंसाफ और इंसानी दोस्ती के पैगाम को उजागर किया। इस मौके पर जश्न मौलूद काबा के पुरमसरत मौके की मुनासबत से केक काटा गया। मारूफ मज़ाहनिगार अनवर मसूद की नई तसनीफ मुझे सब याद है ज़रा ज़रा की तकरीब रुनमाई हुई, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और यादों पर इस किताब में रोशनी डाली। देखते हैं नईम अख्तर भट्टी की ये रिपोर्ट। मारूफ मज़ाहनिगार अनवर मसूद साहब की नई किताब मुझे सब याद है ज़रा ज़रा की तकरीब रुनमाई मकामी बुक शॉप में हुई, जिसमें शायकीन अदब और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अनवर मसूद ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये इनकी 20वीं किताब है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल, यादों और तजर्बात को अपने मखसूस शगुफ्ता अंदाज में तहरीर किया है। मुश्किल लिखना बहुत आसान है, आसान लिखना बहुत मुश्किल। तो मैंने ये राह इख्तियार की है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। मुसन्नफ ने किताबों पर दस्तखत भी किए,
जबकि शुरा ने किताब को बेहद सराहते हुए उसे उर्दू अदब में एक अहम और मुनफरिद इजाफा करार दिया। जो उन्होंने अपने असातिज़ा से सीखा फारसी में, वो सारी चीजें भी उन्होंने इसमें कलमबंद की, जो कि हमारी नई नस्ल के लिए बड़ी अच्छी होंगी कि वो इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे। मुझे जो खास बात इस किताब की लगी है ना, वो इसका बहुत दिलचस्प होना है। यानी ये ऐसी क्रिस्प बुक है कि ये एक नशिस्त में खत्म की जा सकती। कारीन के लिए ये किताब यादों, मजा और जिंदगी के तजर्बात का खूबसूरत इम्तियाज है। मुझे सब है याद जरा जरा, उर्दू अदब में मजा और दानिश का खूबसूरत इजाफा है। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेएलएम। उर्दू और पंजाबी के मुमताज़ शायर, नगमा निगार और सहाफ़ी तुफ़याल होशियारपुरी को हमसे बिछड़े 32 बरस हो गए, मगर वो अपनी खूबसूरत शायरी और गीतों की सूरत में आज भी जिंदा हैं। तुफ़याल होशियारपुरी की अदबी खिदमात का अहाता कर रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम अपनी रिपोर्ट में। शायरी में रोमानवी अंदाज, गजल में लतीफ जज्बात का एहसास और नगमों में वतन से मोहब्बत तुफ़याल होशियारपुरी की शायरी के नुमाया औसाफ हैं। तुफ़याल होशियारपुरी 17 जुलाई 1914 को मशरकी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद स्कूल टीचर बने, ताहम तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन होने के बाइस उन्हें मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। वो तहरीक आज़ादी के इज्तिमात में अपने कलाम से मुसलमान हिंद के जज्बात की अक्कासी करते। इस दौरान तुफ़याल होशियारपुरी गीत नगारी की तरफ माइल हुए और क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर में बनने वाली फिल्मों के लिए गीत लिखे। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहली फिल्म तेरी याद के गीत लिखने का एजाज भी उन्हीं के पास है। फिल्म दूल्हा भट्टी के गानों ने उनको शोहरत के बाहमी अरूज तक पहुँचाया। चिट्ठी मेरे फिल्म चंगेज खान के लिए उनका तराना आज भी ज़बान ज़द आम है। तुफ़याल होशियारपुरी की शेरी मजमूओं में जामे मेहताब, मेरे महबूब वतन, शोले जाम, तजदीद शिकवा और दीगर शामिल हैं। उनका नाते कलाम भी मशहूर हुआ। ज़बां पे हरदम है जिक्र तेरा, लबों पे हरदम है नाम तेरा। वो लाहौर के 2 सालों महफिल और सावगो के मुदीर भी रहे। तुफ़याल होशियारपुरी की अदबी खिदमात के तरफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी मुहतसिब फैसलाबाद जोन ने साल 2025 के दौरान अवामी शिकायत के बरवक्त इजाले में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। फैसलाबाद और ननकाना साहब पर मुश्तमिल इस जोन में मुख्तलिफ वफाकी महकमों से मुताल्लिका 9090 शिकायत पर फैसले किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा जावेद अहमद मुआफिया। वफाकी मुहतसिब फैसलाबाद जोन ने साल 2025 में मुख्तलिफ वफाकी महकमों से मुतल्लिका 9090 शिकायत पर फैसले किए, जबकि इस जोन में वफाकी मुहतसिब के फैसलों पर अमल दरामद की शरह 94% रही, जो मुल्क भर में एक रिकॉर्ड है। हम किसी भी शिकायत का फैसला 45 दिन के अंदर कर देते हैं, लिहाजा ना उसको किसी अखराजात की जरूरत होती है, वो अगर हमारे पास हाजिर होता है या नहीं होता, लेकिन हम वो भी फैसला मेरिट पे करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसके शिकायत का अजाला दौरान समाअत ही हो जाए। फैसलाबाद जोन में फेस्को और लेस्को से मुतल्लिका 2366 शिकायत मौसूल हुई। सुई नादरन गैस पाइपलाइन से मुतल्लिका 659, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 608 और पाकिस्तान बैतुल माल से मुतल्लिका 559 शिकायत पर फैसले किए गए। बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिका 573, नादरा की 236 और FIA से मुतल्लिका 199 शिकायत मेरिट पर निपटाई गई। इनको आकर बगैर फीस के, बगैर वकील के इंसाफ फराहम किया जाता है। वापडा के मतलब जो हमारी शिकायत थी वो इन्होंने सुनी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें इंसाफ फराहम करेंगे। दफ्तर में जाते थे, बार बार वहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। हम यहाँ पे आए हैं, मेरी वालदा का कार्ड भी सर्वे हो जाएगा, हमें उम्मीद है हमारा हक भी मिल जाएगा। फैसलाबाद जोन के अफसरान ने साल 2025 के दौरान 50 से ज्यादा मुकामात पर खुली कचहरियां मुनक्कद की। वफाकी मुतलब की तरफ से इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि 2026 में भी लोगों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब।
रियाज में प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम के ज़रिए तमाम एक प्रेस ब्रीफिंग मुनक़िद हुई, जिसमें फोरम के अहदेदारान, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब से चेयरमैन प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम राना काशिफ रजा ने फोरम के क़याम, अग़राज़ व मक़ासिद और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तफसीली रोशनी डाली और बताया कि फोरम पेशावराना सलाहियतों के फ़रोग़ और कम्यूनिटी की बेहतरी के लिए सरगर्म अमल है। मोटिवेशनल स्पीकर और सदर रियाज रीजन डॉक्टर वक़ास ने नौजवानों की रहनुमाई, मुस्बत सोच और खुद एतमादी की अहमियत पर खिताब किया। सदर डॉक्टर फोरम डॉक्टर ज़मीर ने तिबी और समाजी खिदमात में फोरम के किरदार को उजागर किया। चेयरमैन मजलिस आमला एजाज चौधरी ने तंजीमी उमूर और आइंदा सरगर्मियों से आगाह किया, जबकि रिजवान चौहान, सरदार तलत और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब करते हुए फोरम की काविशों को सराहा। इख्तिताम पर सहाफ़ियों की बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में उन्हें एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया और मीडिया के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया गया। इस मौके पर चेयरमैन प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम के चेयरमैन राना काशिफ रजा की अपनी टीम के हमरा नुमाइंदा PTV न्यूज़ हाफिज़ इरफान खटाना से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। 13,500 प्रोफेशनल जिन्होंने हमें ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें इन्वेस्टर भी हैं और उसमें सारा कुछ शामिल है। बाकी यहाँ जो पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं, मैं ये दरख्वास्त करूँगा बराए मेहरबानी, कभी भी रूल को वायलेट नहीं करना आप लोगों ने, कभी भी। आपके पास प्रोटेक्टर है, जिस तरह यहाँ पे हमारे लास्ट टाइम चेयरमैन साहब आए थे POF के, उन्होंने कहा था कि किसका प्रोटेक्टर होगा तो उसको नहीं किया जाएगा, पोर्ट किया जाएगा, ओके, और वो आ सकता है सऊदी अरब में। थैंक यू वेरी मच सर। और ये हमारी दरख्वास्त है कि जितने भी प्रोफेशनल हैं हमें ज्वाइन करें। हमारा प्रोफेशनल फोरम का पेज है लिंक्डइन पे, आप जाएं। हमने अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों को, कोई भी जो लिंक है वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि हमारे पेज के अपनी पोस्ट लगाएं। हमने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, आप हमारे पोस्ट आएँ, लिंक लगाएं, CV दें उधर और जॉब हासिल करें। सऊदी अरब में मौजूद मुख्तलिफ पाकिस्तानी लेबर कैंप्स में रोड शोज का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट समेत गेम्स शो का एहतमाम भी किया जा रहा है। हजारों पाकिस्तानी वर्कर्स तफरीह से भरपूर इवेंट से महजूज हो रहे हैं। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज के मुख्तलिफ लेबर कैंप से मुकीम हजारों पाकिस्तानियों को रकूम की मुंतकिली के लिए लीगल चैनल्स के जरिए निजी बैंक की जानिब से आगाही रोड शो का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि मुल्की मईशत को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाया जा सके। रोड शोज में जहाँ वर्कर्स मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करके ढेरों इनामात जीत रहे हैं, वहीं म्यूजिकल कॉन्सर्ट में मुकामी गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाकर वर्कर्स को महजूज कर रहे हैं। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि सऊदी अरब में 28 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजकर मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि वर्कर्स लीगल बैंकिंग सिस्टम के जरिए रकूम की मुंतकली को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रेमिटेंसेस एक बैकबोन और एक लाइफलाइन का दर्जा रखती है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन ओवरसीज पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में करते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और आज जो यहाँ गैदरिंग है, जो इवेंट है, वो बेसिकली टू अप्रिशिएट देयर कंट्रीब्यूशंस। पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक मुश्तरका इदारा है, उसकी रहनुमाई के अंदर पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो स्टेप्स ले रहे हैं कि लीगल रेमिटेंसेस को प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हमने सऊदी अरब के मुख्तलिफ कैंपों के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ की हैं ताकि अपने जो पाकिस्तानी हमारे बैरून मुल्क काम करते हैं उनको इस चीज़ से आगाही देना कि आप पाकिस्तान में जब भी पैसे ट्रांसफ़र करें, अपनी ज़र मुबादला जो आपकी इनकम है, आपकी जो मेहनत की कमाई है, आप पाकिस्तान भेजें तो आप बैंकिंग चैनल को यूज़ करते हुए भेजें। इससे आपको और आपके मुल्क को दोनों को फ़ायदा है। और ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, ये तमाम काविशें हैं, लोगों को इंजॉयमेंट के साथ साथ इस चीज़ की तरफ लाना है कि आपने लीगल चैनल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है और अपना किरदार इस तरीके से अदा करना है। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खेल या सियासत, भारतीय रवैये पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। BCB ज़राए के मुताबिक बोर्ड आइंदा चंद दिनों में ICC को बाज़ाब्ता खत लिखेगा, जिसमें कोलकाता में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में अपने इब्तदाई 3 मैचेस कोलकाता में खेलना है, जिनमें पहला मैच 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शेड्यूल है। BCB की हंगामी ऑनलाइन मीटिंग के बाद मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजाद हुसैन ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके बाद हम ICC को खत लिखेंगे। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजराल ने भी खुलकर खदशात का इज़हार करते हुए कहा कि हमें भारत में कौमी टीम की सलामती पर शुकूक हैं। उन्होंने न सिर्फ BCB को ICC से रब्ता करने की हिदायत दी, बल्कि वजारत इत्तलात व नशरियात से बांग्लादेश में IPL की नशरियात रोकने की दरख्वास्त भी की है।
IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज किया, जिसके बाद बांग्लादेश बोर्ड ने भी सख्त मौकिफ अपनाने की ठान ली है। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट मैच के पहले रोज इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 211 रन बनाए। बारिश के बायस सिर्फ 45 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। सिडनी में खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। जैक किराले और बेन डकेट ने इनिंग्स का आगाज किया तो डकेट 27 रन बनाकर आउट हुए। किराले 16 और जेक बेथल 10 रन बना सके। जो रूट और हैरी ब्रूक ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लिश टीम ने 45 ओवर्स में 3 विकेटों पर 211 रन बनाए थे कि बारिश के बायस खेल को रोक दिया गया, जिसके बाद खेल मुमकिन नहीं हो सका। पहले रोज खेल के अख्ताम पर रूट 72 और ब्रूक 78 रन के साथ नॉट आउट थे। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसलाकुन बढ़ती हासिल है। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर। स्पोर्ट्स मेले में यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स के तलबा तलबात ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। तफसील जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट में। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के स्पोर्ट ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसफ अली ने किया। इस मौका पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स और दीगर शोबाजात के प्रोफेसर्स भी मौजूद थे। वाइस चांसलर ने तुलबा को स्पोर्ट्स की अहमियत के बारे में आगाह किया। स्पोर्ट्स तुलबा में नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और मुस्बत सोच को फ़रोग देती है। स्पोर्ट्स गाला के दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और रस्साकशी, टेबल टेनिस और कबड्डी के दिलचस्प मुकाबला जात मुनक्कद किए गए, जिनमें खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन सलाहियत का मुजाहरा किया। हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ना ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चों को ना पढ़ाई के अलावा भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज बहुत मज़ा आ रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर कबड्डी हो रही है, क्रिकेट हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा ने हैंडीक्राफ्ट्स और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए हुए थे। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर कामयाब खिलाड़ियों और टीम में इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की गईं। शुरका ने इस इवेंट को यादगार और कामयाब करार दिया। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। इंटरनेशनल लीग T20 का फाइनल आज खेला जाएगा। सीजन की 2 बेहतरीन टीमें डेजर्ट वाइपर्स और MI एमिरेट्स टाइटल के हुसूल के लिए आमने सामने होंगी। दुबई में शेड्यूल मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। डेजर्ट वाइपर्स ने क्वालीफायर 1 में MI एमिरेट्स को शिकस्त देकर फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालीफाई किया। MI एमिरेट्स ने क्वालीफायर 2 में अबू धाबी नाइट राइडर्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। MI एमिरेट्स की टीम IL T20 की दिफाई चैंपियन है, जबकि डेजर्ट वाइपर्स पहली मरतबा टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। बिग बैश क्रिकेट लीग में होबार्ट हरिकेन्स ने सिडनी थंडर को 6 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त सिखाया गया। सिडनी में खेले गए मैच में सिडनी थंडर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बनाए। ओपनर डेविड वार्नर ने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 65 गेंदों पर 130 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। वार्नर ने 9 छक्के और 11 चौके लगाए। निक मैडिसन ने 30 और सैम बिलिंग्स ने 20 रन जोड़े। होबार्ट हरिकेन्स की जानिब से विल प्रिस्टविच ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। होबार्ट हरिकेन्स ने 206 रन का हदफ 17.5 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओपनर टिम बार्ड ने 90 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 49 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के और 10 चौके लगाए। मिशेल ओवन ने 18 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। निखिल चौधरी 29 और मैथ्यू वेड 13 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मैच हारने के बावजूद सिडनी थंडर के डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द मैच करार हुआ। बिग बैश क्रिकेट लीग में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। इवेंट के 22वें मैच में मेलबर्न स्टार्स की मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ बैटिंग जारी है। मेलबर्न में खेले जा रहे मैच में मेलबर्न रेनिगेट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। लीग के 23वें मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स मध्य मुकाबिल होंगे। बिग बैश लीग के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। माली ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कासाब्लंका में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में माली ने ट्यूनिस को असाब शिकन पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से शिकस्त देकर लास्ट 8 में जगह बनाई। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद फैसला पेनल्टीज पर हुआ। एल बिलाल चोरे ने फैसलाकुन पेनल्टी स्कोर करके माली को फतह दिलाई। क्वार्टर फाइनल में माली का मुकाबला दिफाई चैंपियन सेनेगल से होगा। हस्पानवी फुटबॉल लीग ला लीगा में
बार्सिलोना ने एस्पेनुअल को मात दे दी। कैनेला में खेले गए मैच में बार्सिलोना ने एस्पेनुअल को एकतरफा मुकाबले के बाद 2 गोल से जेर किया। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। 86वें मिनट में डैनी ओल्मो ने गोल करके बार्सिलोना को बढ़तरी दिलाई। खेल के इख्तितामी लम्हात में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने दूसरा गोल करके बार्सिलोना की जीत पर मोहर जब्त कर दी। पॉइंट्स टेबल पर बार्सिलोना 49 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। इतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए में अटलांटा ने रोमा को हरा दिया। बरगामो में खेले गए मैच में अटलांटा ने 1 गोल से कामयाबी समेटी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल जॉर्जियो ने खेल के 12वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर रोमा 33 पॉइंट्स के साथ 5वें और अटलांटा 25 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर है। मिलान 38 पॉइंट के साथ टॉप पोजीशन पर है। Scalvini's there. Scalvini puts on the pressure and Atalanta lead. खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया नीस। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।